Hello guys, welcome back to my channel. This is me Hansika Chauhan and I'm back with a new video. So this video is very special for me and at the same time it will be very informative for you all. So title से आपने guess कर ही लिया होगा. This video is about how my first year of articleship ended at EY, what are my experiences and what were my learnings from the first year itself. So yeah, let's begin with the video. First of all, I would like to thank all of you for so much love that you showed to one of my video, that is what all I did for articleship at Big Four. एंड आप लोगों ने उसको इतना प्यार दिया, लाइक 11,000 व्यूज़ गाइस. मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था मेरी किसी लॉन्ग वीडियो पे इतने व्यूज़ आ सकते हैं. तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड उसके कमेंट्स तो इतने प्यारे होते हैं. सो ये वीडियो भी उन कमेंट्स के लिए ये, लाइक आप लोगों ने मेरे से पूछा था व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड स्टैट ऑडिट. सो आई बी ब्रीफिंग यू अबाउट द इंटरनल ऑडिट इन दिस वीडियो एंड फॉलोड बाय माई फर्स्ट ईयर आर्टिकल एक्सपीरियंस. So guys, let's begin with the meaning of audit. So when I was taking my intermediate classes, I took audit class from CA Neeraj Arora sir, and उन्होंने बहुत ही प्यारे शब्दों में समझाया था what is the meaning of audit. That is, कोई भी काम उसके डिफाइंड प्रोसीजर्स एंड प्रोसेस के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है, के प्रोसेस को चेक करने को हम ऑडिट कहते हैं. सो नाउ आई टेल यू व्हाट इज इंटरनल ऑडिट. सो इंटरनल ऑडिट इज बेसिकली ड्रिवन मोर टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ अ बिजनेस rather than the financials of a business. And internal audit mein there are different processes such as P2P, O2C, HR payroll, and your finance and accounts, facility management and operations and maintenance, and the one is project audit. So basically P2P is procurement, that is परचेजेस के जितना भी प्रोसेस होता है वो P2P के प्रोसेस के अंडर आता है. O2C इज योर सेल्स के रिलेटेड जितना भी प्रोसेस होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो दैट कम्स अंडर O2C ऑडिट. HR पेरोल में HR डिपार्टमेंट का होल प्रोसेस, द हायरिंग, इंटरव्यूइंग कम्स अंडर द HR एंड पेरोल ऑडिट. एंड आई माई सेल्फ डिड 2 यूनिक ऑडिट्स जो ज़्यादातर आपको कॉमनली नहीं मिलेंगे, दैट इज ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस एंड द प्रोजेक्ट ऑडिट. So that was a very brief description regarding what is audit and what are all the process under internal audit. So now let's move towards my articleship experience and उसमें भी मैं आपको internal audit की काफ़ी बातें बताऊंगी. So yeah, let's begin with that. So I entered EY as a very immature and an underconfident girl coming from a very small town, that is Vikasnagar. And यहाँ पे people are very smart and you have to, if you want to outshine them, you have to be like you have to compete with them each and every day, so you have to keep your spirits high every time. So मेरा 1 साल का जो एक्सपीरियंस था आर्टिकलशिप में, it was very good. मैंने इतनी चीज़ें सीखी and now when I see myself after 1 year, I know where my learning curve has taken me. Okay, till date I did total 6 clients and the 7th client I am doing right now. So don't misinterpret it like I am saying that I did it myself. It means that I was in a team and under the supervision of seniors. So that's how I ended up doing 6 clients in a year and experience was very good. So there were ups and downs obviously. So what happens जब हम articleship में enter करते हैं तो we don't know anything about our domain and how we have to operate and what should be, you know, our mindset towards our work. And we, because हम नए नए बच्चे इंटरमीडिएट के पढ़ाई करके अब हमें काम करना है, we have to go to office, we have to act professional and we have to deal with clients every day. So ये बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होता है. तो इनिशियली तो मुझे काफ़ी चैलेंजेस आए थे बिकॉज मुझे क्लाइंट डीलिंग नहीं करनी आती थी. ऑब्वियसली कैसी आएगी, लाइक मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि क्लाइंट के साथ बैठ के पूरा प्रोसेस अंडरस्टैंड करना होता है एंड उसके बाद सीनियर को जाके बताना होता है. तो इट वाज ऑल वेरी न्यू टू मी. सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ब्रीफ यू अबाउट ऑडिट शुरू कैसे होता है एंड व्हाट आर द स्टेप्स एंड एंड कैसे होता है. सो बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन होगा. देन उसके बाद मैं फर्दर आपको बताऊंगी क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आर्टिकलशिप के इनिशियल डेज में एंड आपको भी उसके बारे में पैनिक नहीं करना है बिकॉज आई डिड इट माई सेल्फ. तो आई डोंट वॉन्ट यू ऑल टू पैनिक अबाउट द सेम. सो द प्रोसेस इज ऑडिट स्टार्ट होता है. सो वॉट वी डू इज़, पहले हम क्लाइंट से पूरा प्रोसेस समझते हैं. देन क्लाइंट हमें डेटा देता है. देन वी डू ऑल द डेटा एनालिटिक्स, परफॉर्म सेवरल चेक्स ओवर द डेटा एज पर द प्रोसेस. देन हम क्लाइंट को उनके अकॉर्डिंग, लाइक अपना डेटा एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम उनको ऑब्जर्वेशंस देते हैं. देन वी हैव टू डिस्कस द ऑब्जर्वेशंस विद देम one-on-one and then we have to you know catch their remarks. That is a further action plan.
सो वी डिस्कस द फर्दर एक्शन प्लान विद द क्लाइंट एंड देन उसके बाद हम एक फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं, दैट इज़ इन PPT फॉर्म है, हम रिपोर्ट बनाते हैं. उसके बाद उसमें हम अपनी ऑब्जर्वेशंस, क्लाइंट का मैनेजमेंट एक्शन प्लान एंड द टाइमलाइन, जब कब से वो उसे इम्प्लीमेंट करेंगे और गोइंग फर्दर उनके क्या एक्शंस होंगे, उसको हम पूरा रिकॉर्ड लाइक एक रिपोर्ट बनाते हैं. देन वी शेयर इट विद द क्लाइंट. सो दीज आर द पॉइंट टू पॉइंट स्टेप्स जिसके थ्रू ऑडिट शुरू होता है एंड ख़त्म होता है. सो ये बहुत ही मैंने आपको ब्रीफ में बताया है. इसके इसे करने में 1.5 months लग जाते हैं for every client I'm telling this about. Then I'll be sharing now some challenges ये हैं. First and the foremost important and difficult thing जो मेरे को लगती है पूरा ऑडिट में, that is client dealing. इसको मैं एक ही लाइन में डिफाइन करूँगी, that is जितने के आप होते हैं उतना आपके क्लाइंट के पास एक्सपीरियंस होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव स्टार्टेड योर आर्टिकलशिप एट 20 years of age, तो आपके क्लाइंट के पास 20 या उससे प्लस का ही हमेशा एक्सपीरियंस होगा. तो you have to be so smart during this whole of the audit process that you have to get facts to your point and you have to challenge your client that this you are doing wrong because of the stated fact. तो मेरे को ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट लगता है, क्योंकि भाई उन्हें 30 साल का एक्सपीरियंस है एंड यू बीइंग फर्स्ट ईयर आर्टिकल आपको ने चैलेंज करना है फेस टू फेस. सो पहला चैलेंज तो मेरे को लगता था क्लाइंट डीलिंग, लगता है क्लाइंट डीलिंग. एंड सेकंड मेरे को लगता है जैसे अभी अगर आपके इनिशियल ऑडिट्स हैं तो आपको ना एकदम ऐसे इंडिपेंडेंट नहीं भेजेंगे फॉर प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट के साथ. तो सीनियर जाएगा एंड यू हैव टू मेक नोट्स, सीनियर विल डिस्कस एंड यू हैव टू मेक नोट्स. बट जैसे जैसे इट विल बी 6 months 7 months पास हो जाएंगे तो वो आपको अकेले भेज देंगे दैट गो एंड अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस विद द क्लाइंट. सो आपको नोट्स भी बनाने हैं एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट विद द क्लाइंट ऑल्सो. उसके बाद आके द नेक्स्ट जो मेरे को सबसे ज़्यादा टफ लगता है, दैट इज़ आप क्लाइंट से समझ के आ गए, आपने क्रॉस क्वेश्चन किया अकॉर्डिंग टू योर योर लेवल ऑफ थिंकिंग, आपने कर लिया क्रॉस क्वेश्चन. देन यू कम टू योर सीनियर एंड डिस्कस द होल प्रोसेस विद योर सीनियर एंड दैट्स द पॉइंट जब सीनियर आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा. सो वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग में अगर सीनियर को लगा कि ये ज़्यादा पॉइंट्स ये फॉर एग्जांपल सीनियर ने आपसे 10 पॉइंट्स पूछे एंड 2 पॉइंट आप ऑलरेडी क्रॉस क्वेश्चन कर लिए थे आपने अपने क्लाइंट से, तो उसमें तो आपका डिस्कशन अच्छा रहेगा. बट वॉट अबाउट द 8 पॉइंट्स, सो उन 8 पॉइंट्स का आपको दोबारा पूछने जाना पड़ेगा. सो उसमें आई पर्सनली मेरे को एम्बैरस फील होता था कि ये पॉइंट्स मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया यार, सीनियर के दिमाग में आ रहे हैं तो कुछ तो मेरे दिमाग में भी आ जाना चाहिए. बट या सो ये भी धीरे धीरे आएगा. क्रॉस क्वेश्चनिंग कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप क्लाइंट से फर्स्ट टाइम उससे प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो एंड यू विल बी एबल टू डू परफेक्ट क्रॉस क्वेश्चनिंग. इसका रीज़न बताती हूँ मैं क्यों नहीं होगा. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्लाइंट फर्स्ट प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग, आपको खुद नहीं पता कि प्रोसेस क्या होगा. अब अगर मैं 1 साल बाद बोलूँ कि मेरी क्रॉस क्वेश्चनिंग स्ट्रांग हुई है तो वो क्यों हुई है, मैंने 6 क्लाइंट्स पे डिफरेंट प्रोसेस अंडरस्टैंड किए हैं, सीनियर्स को सुना है क्रॉस क्वेश्चन करते हुए, तो हमें आइडिया हो जाता है अब कि किस प्रोसेस में क्या क्रॉस क्वेश्चन करना है एंड क्लाइंट जो बोल रहा है उसको क्रॉस क्वेश्चन करना होता है. सो ये सब एक्सपीरियंस के साथ ही आता है. तो कभी भी अपने इनिशियल डेज में सेल्फ डाउट नहीं करना है अपने आप को. सो चैलेंजेस का तो भरमार चलता रहेगा. बीच में आई वॉन्ट टू ब्रेक इन कि जो मेरे ये 6 क्लाइंट्स थे, इनमें जो मेरे रिस्पेक्टिव 6 सीनियर्स थे, दे वर वेरी ग्रेट. मतलब आई एम नॉट जस्ट शोइंग ऑफ या आई एम नॉट जस्ट लाइंग कि मैं ये यूट्यूब वीडियो के लिए बोल रही हूँ, बट मेरी टीम जेन्युइनली बहुत ही अच्छी है. एंड जो मेरे 6 सीनियर्स थे, आई एम थैंकफुल टू देम कि मेरे को इतने अच्छे से अब प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, इतने अच्छे से आई एम एबल टू एनालाइज थिंग्स एंड डेटा एनालिसिस में परफॉर्म कर लेती हूँ. सो आई एम थैंकफुल टू देम. बहुत ही अच्छे सीनियर्स थे मेरे, तो वो कहीं ना कहीं अब मेरे को दिख रहा है अपने काम में जो उन लोगों ने मेरे को सिखाया था रिस्पेक्टिवली. सो अब चलते हैं थर्ड चैलेंज की तरफ. दैट इज़ मेरे को लगता है एक्सेल में लोग इतने स्ट्रांग नहीं होते, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग एज स्टूडेंट्स एक्सेल पे हमारी इतनी कमांड नहीं होती क्योंकि हमारा काम नहीं है एक्सेल से, राइट. बट मार्क माई वर्ड्स, आर्टिकलशिप में आप एक चीज़ तो पक्का कर लेंगे, एक्सेल में आपकी स्पीड लाइक एनीथिंग हो जाएगी. मैं जब फर्स्ट डे मेरा EY में था, मैंने एक सीनियर आर्टिकल था मेरे साथ उस टाइम, मैंने उसको देखा था एक्सेल पे टास्क परफॉर्म करते हुए एंड उनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी. मैंने उनसे एवरी न्यू आर्टिकल अपने सीनियर आर्टिकल से यही क्वेश्चन पूछता है कि आप इतनी जल्दी कैसे परफॉर्म कर लेते हैं एक्सेल पे अपने रिस्पेक्टिव टास्क. सो मैंने भी उनसे एक क्वेश्चन पूछा था और उन्होंने कहा था 1 month कंटिन्यू कर लो काम एंड
आपको पता चल जाएगा। एंड सीरियसली 1 मंथ बाद, 1 और 2 मंथ्स के बाद मुझे रिजल्ट्स दिख गए थे। जो शॉर्टकट्स जो जैसे जैसे अप्लाई करने थे उनसे सीखा मैंने अपने सीनियर्स से, एंड मेरी भी स्पीड आज तो काफ़ी अच्छी है। सो नाउ आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो। सो इसमें क्या था, मेरा फर्स्ट ईयर का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, चैलेंजेस थे, एंड कैसा मेरे को EY में फील हुआ। एंड ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बट इट ऑल्सो केम विद अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी बिकॉज स्टडीज़ मैनेज करना एंड एट द सेम टाइम ऑफिस मैनेज करना, एंड दैट टू एट Big 4 इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। सो आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना पड़ता है एंड हमेशा अपने आप को पुश करना पड़ता है कि येस, यू हैव टू टेक क्लास ऑल्सो, यू हैव टू गो टू ऑफिस ऑल्सो, यू हैव टू मीट सीनियर्स एक्सपेक्टेशंस ऑल्सो, एंड यू हैव टू कंप्लीट योर स्टडीज़ एट टाइम ऑल्सो। तो ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करके आप लाइक डिसीजन ले सकते हैं। सो गाइज, आई वॉन्ट टू ऐड वन मोर थिंग एट लास्ट कि अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है मेरे से, लाइक अबाउट एनी थिंग, जो भी आपको मेरे से पूछना हो, आप कॉमेंट सेक्शन में उसको राइट डाउन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपके क्वेश्चन पे बनाऊंगी। सो इट विल बी अ मोर ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो। सो आप अपने क्वेश्चन मेरे को कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो या गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।